الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ قابل صد احترام معزز و باوقار حاضرین، آج کے جلسے کے صدر و محترم محترمہ شان ہند صاحبہ، مستقل ڈگنیٹی صاحب، صوفی نورالعین صاحب، رضوان سر صاحب، سہیل عبدالکریم صاحب اور دیگر معزز و باوقار حاضرین، ایک نعرہ لگا تھا غالباً 2007 میں، ہاتھوں میں ہاتھ دو، سچائی کا ساتھ دو۔ پھر اس کے بعد اصلاح سیاست کا نعرہ لگا، اصلاح معاشرہ کرنے والے اصلاح سیاست میں آئے۔ 99 میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا، جو لوگ، جو عالم، جو ایم ایل اے اصلاح معاشرہ کر رہے تھے، اصلاح سیاست کر رہے تھے، کہ ساتھی نہال احمد صاحب کو ووٹ دینا ناجائز و حرام ہے۔ اگرچہ ان کا نام نہیں لیے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ بتا سکتا تھا کہ یہ فتویٰ ساتھی نہال احمد کے خلاف ہے، اور شیخ رشید صاحب کی حمایت میں وہ فتویٰ جاری تھا۔ اور بہت روزنامہ میں، سامنامہ میں ہیڈنگ میں لکھا تھا کہ دارالعلوم محمدیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج فلاں 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 کا فتویٰ ہے کہ فلاں کو ووٹ دینا ناجائز و حرام ہے۔ وہی مفتی محمد اسماعیل 2019 میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا شہر جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، اور ٹھیکیدار خانوادہ شیخ رشید، شیخ آصف، یہ تمام ان کے ہواری مواری ایک ایک روڈ کا کئی بار فنڈ نکالتے ہیں، اور روڈ کاغذ پہ بنتا ہے، حقیقت میں نہیں بنتا۔ یقیناً ایک عالم تھے، ایک مفتی تھے، سبھی نے ان کی بات پر بھروسہ کیا، اور سارے مسلک کے لوگ، ساری برادری کے لوگ، ساری برادری اور مسلک کے ذمہ داران، تمام لوگوں نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے آنکھ بند کر اس بات پر بھروسہ کیا کہ چلو اصلاح سیاست کا نعرہ لگانے والے شاید اب ان کا ضمیر جاگا ہے، اور وہ انشاءاللہ شہر کے روشن مستقبل کے لیے، نوجوان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، شہر کے وکاس کے لیے شاید اب کچھ کر لیں۔ ہم سب لوگ اس کے ساتھ جڑے، یہ جتنے منچ پر بیٹھے ہیں سبھی لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، اور 1,17,000 ووٹ سے زیادہ دے کر ہم نے ان کو کامیاب کیا۔ آپ دیکھیں یہ 5 سال میں جتنا گروپ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ایک کر سب ان سے دور چلا گیا۔ اور حیرت یوں ہوئی کہ آج سے 5 مہینہ پہلے ایک مدرسے کے کام کو لے کر جو مجھے دھوکہ دیے، میرے ساتھ 420 کیے، وہ تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ ہے کہ میں مدرسے کے مدرسین کے سامنے، مدرسے کے اراکین کے سامنے رسوا ہوا۔ وہ لوگ میرا مذاق اڑائے، وہ لوگ مجھ پر ہنسے کہ عطار حضرتی اور مفتی اسماعیل تو ایک سکے کے 2 روپ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو مفتی اسماعیل نے دھوکہ نہیں دیا، عطار اشرفی نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا۔ میں اخلاقاً وہ تاریخ ہے، آج کی تاریخ ہے، وہ مدرسے کی بہترین نہیں چڑھا۔ میں یہاں یہ جان بوجھ کر بات کر رہا ہوں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دارالعلوم خانقاہ اشرفیہ کے صدر کا بیان آتا ہے کہ یقیناً ٹھیکیدار نے ان سے کہا کہ تم ان کو تھپتھپاتے رہو، یعنی مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی تھپتھپاتے رہو، عطار اشرفی کو بھی تھپتھپاتے رہو۔
इस बात को लेकर मैंने उनका साथ छोड़ा। मैं चैलेंज देता हूं कि मैं 13 साल वफादारी के साथ उनके साथ रहा। कभी मैंने ठेका नहीं मांगा, कभी वर्करी की कोई फीस नहीं मांगी, भले और मैं उनकी जात पर और उनके वर्कर इधर उधर भागे ना, तो मैं उनके वर्करों को जो मुझे चच्चा बोलते थे और आज भी मेरी इज्जत करते हैं, मैं उन पर खर्चा करके जोड़ता था कि मुफ्ती इस्माइल की ताकत टूटे नहीं, मुफ्ती इस्माइल कहीं से बिखरे नहीं। लेकिन अफसोस कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अपने दोस्तों के भी वफादार नहीं हुए। उसके बावजूद में हमारा दिल नर्म है। यकीनन वो बीमार पड़े, मैं दवाखाना गया, मुझे रोना आया। इंसान है, 13 साल की दोस्ती थी, तो आज उस आंसू का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके मंच से जो इस्लाही सियासत और अच्छाई और बुराई का नारा लगाकर ये साल इलेक्शन लड़ रहे हैं 24 का, उनके मंच से आज समाजवादी के वर्करों को खुलेआम गाली दी जा रही है। कोई रोकने वाला नहीं है। ये तुम्हारा इस्लाही सियासत है, ये तुम्हारा इस्लाही मासरा है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, वफादारी की ये कीमत मत दो। शहर को धोखा दिया है, कम से कम अपने साथियों के साथ तो वफादारी करो। बहरहाल आज हमारा शहर यकीनन तबाही के दाने पर है। एक हरा झंडा था, उसके मुकाबले में एक हरा झंडा आया। मैं पूछना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि बताओ, जब तुम नारा लगाकर हिंदू फिरका परस्तों के महल्ले में जाओगे और वहां भी क्या ये नारा लगाओगे कि नारे तकबीर, तो वहां भी नारा लगाओगे तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इनसे पूछो, इन नारा लगाने वालों से या नारा लगवाने वालों से, कि 12 नवंबर में आपका नारा कहाँ था, वो रिश्ता कहाँ जुटा था, वो रिश्ता क्या भगवान फिरका परस्तों से तुम्हारा ये रिश्ता जुटा हुआ था। हरा झंडे के मुकाबले में हरा झंडा लाए, यानी मालेगांव के मुसलमानों का, मालेगांव की मिल्लत का, मालेगांव की मस्जिद और मीनारों के शहर को ताकदार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान इनका परस्त है। इसलिए तुम बोल रहे हो कि भाई मैं हाउस में जाऊंगा तो हरा ही झंडा पहन के जाऊंगा। जब तुम हरा झंडा पहन के जाएंगे तो वो मुसलमानों के हरे झंडे के मुकाबले में भगवा झंडा नहीं लाएंगे। फिर मालेगांव में फंसा मुसलमानों का कत्लेआम, 2019 का फसाद याद करो। कमोबेश 18-19 मुसलमान उस फसाद में शहीद हुए थे। जब ये नारा कहा था तेरा मेरा क्या रिश्ता, जब ये नारा कहा था नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस महल्ले के बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जो अदारे हैं, जो कलबे हैं, जो तंजीमें हैं, कहीं ना कहीं वो सियासी गुंडे और सियासी मक्कारों का इस्तेमाल हो जा रही है। हमें शहर के लिए सोचना है, हमें बिरादरी के लिए सोचना है, हमें मसलक के लिए सोचना है। मेरे दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ ना बिरादरी है, ना मसलक है, ना कोई मामला है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी है। 24 घंटा सियासत करते हैं, अपने पेट के लिए नहीं, मिल्लत के लिए, शहर की तामीर और तरक्की के लिए। निहाल साहब जब तक एमएलए थे, ओ मालेगांव के मुसलमानों, वो इस वार्ड के गयूर बुजुर्गों, अपने बच्चों के लिए सोचो और इन बच्चों को समझाओ। क्या निहाल साहब के वक्त या अंग्रेजों की, जब हमारा मालेगांव अंग्रेजों के ताबे में था, उस वक्त से आज की तारीख तक क्या कभी काज़ी शहर मुफ्ती हसनैन कभी अपने मदरसे के बच्चों को लेकर रोड पर आए?
मदरसे के बच्चे कभी एहतजाज किए, मदरसे के बच्चे कभी धरना दिए? क्यों मुफ्ती हसनैन को मिल्लत के तमाम तलबा को लेकर रोड पर आना पड़ा? ये सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कसूरवार नहीं है। शेख आसिफ साहब के खानदान, उनके घर में 10 साल मियां सिख थी, 2.5 साल वालिद साहब, 5 साल वालदा साहिबा और 2.5 साल शेख आसिफ साहब। ये 10 साल मियां थे, 10 साल उनके वालिद एमएलए थे, 5 साल तुम एमएलए थे। तुमने शहर की तामीर और तरक्की के लिए, तुमने मस्जिद और मदरसों के आंगन और दुआरे के लिए क्या काम किया? मेरे अजीज दोस्तों, अगर मस्जिद के लिए कोई काम किया जाता है, एक मोमबत्ती भी जलाई जाती है, एक चिराग भी जलाया जाता है, तो उससे ये नियत लिखी जाती है कि इसका इसाले सवाब जो है मेरे बुजुर्गों को मिलेगा। दिखावा नहीं किया जाता, ऐलान नहीं किया जाता। मस्जिद में कुछ दिए तो इमाम साहब को पैतरी पे लाकर दुआ किया, दुआ नहीं करवाई जाती, बल्कि दिल में नियत की जाती है कि इसका सवाब मेरे वालिद साहब को मिले, मेरी वालदा को मिले, कुल उम्मत को मिले। इन्नमल अमाल बिन्नियात, इंसान का सारा दारो मदार उसकी नियत पे है। अगर तुम्हारी नियत मस्जिद में अच्छा काम करने के लिए सियासी है तो तुमको दुनिया ही में मिलेगा। अगर तुम्हारी नियत आखिरत के लिए है तो इसका अज्र कब्र में मिलेगा, हश्र में मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं मालेगांव के और बिलखुसूस इस वार्ड के बुजुर्गों से, दोस्तों से, सरपरस्तों से, अदारों, कल्बों, बज़्मों से कि भाई देखिए, आप जरा अपने जमीन पर आवाज दे कि इस वक्त तो जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा हुनर, सियासत का जानने वाली कौन है? तो आप क्या जमीन आवाज देगा कि मोहतरमा साले हिंदू साहिबा। अपने जमीन से सोचे मेरे भाइयों, ना मुझे किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। मैं शहर के तामीर और तरक्की के लिए, शहर के विकास के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक पढ़ी लिखी खातून को अल्लाह के वास्ते 5 साल का मौका दो। 5 साल में इंशाअल्लाह ये निहाल अहमद की तरबियत याफ्ता लड़की है, ये कानून जानती है, ये वकालत जानती है, ये सियासी तजुर्बेकार है, क्योंकि सियासी तजुर्बेकार बावकार शेर महाराष्ट्र निहाल अहमद की बेटी शेरनी है। 5 साल में ये वो कारनामा करेगी जो 25 साल में इन लोगों ने नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला अपने ज़मीर की आवाज पर 20 तारीख को 6 नंबर की बटन साइकिल पर निशान लगाए और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना बाप खोले। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।